Welcome to Triple IT Kalani Cortex Flow AI Lab. So today's our video is about totally how to use the PINQ board. So you know कि इस board को आप लोग देख ही होंगे. Exactly, this is the PINQ board. So today we're gonna start about to learn about how to use that particular board and how to implement this board to our PC for Python based coding. So कुछ वीडियो आप लोग YouTube पे देखे होंगे कि वेरिलॉग कोड कैसे करते हैं PIN को बोर्ड पे और इसको सेटअप कैसे करते हैं व्हाट द वेरिलॉग क्यू. So today we will implement this board or use this board for Python programming. So how to implement this board and how to configure this board for Python in Windows. So today I'm gonna show you that particularly. So first of all, before starting that, what the components do you need? First, this PYNQ board we should have. So after PYNQ board, what we have? This is the one cable we have for the PYNQ board, one USB cable. After that, we have. Now let's come up to see. एक Ethernet cable रहेगा. This is the one Ethernet RJ cable, RJ45 Ethernet cable रहेगा for the communication for the networking purpose to establish the IP address to the PYNQ board to the PC. After that क्या रहेगा हमारे पास? One adapter. This is a mention that this is a 12-volt adapter. So never use your laptop adapter or anything else because there will be harmful for your board. So you need a 12-volt adapter. This is the one component again. And after that we need one micro SD card. So this is already comes from the board. I mean जब तुम लोग ये बोर्ड खरीदोगे या फिर तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे कुछ रहेगा तो इसके साथ ये वाला चिप तुम्हारे साथ आएगा. इसमें प्रीलोडेड पाइथन होगा जो Xilinx पाइथन बोलते हैं इसको. So ये ऑलरेडी प्रीलोडेड होगा. You don't have to boot it or anything else. तो इसके अंदर वो रहेगा ही, ठीक है. So after that what we will do? So let's come up. So यहाँ पर हमारा बोर्ड का एडाप्टर का मतलब जो मेन कंपोनेंट रहेगा उसको पहले कनेक्ट करेंगे. So there we have our 12-volt charger or adapter. First we'll configure it. So you can see this is configured. So let's add it. After that what we'll do, we have to add our RJ cable to our board. So here it is. Now our adapter, you can come up थोड़ा सा क्लोज आ जा. देन हमने अपना RJ केबल चार्ज कनेक्ट कर लिया, अपना एडाप्टर कनेक्ट कर लिया. उसके बाद बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा केबल ऐड करेंगे. थोड़ा सा डेटा केबल ऐड हो चुका है, एडाप्टर और हमारा RJ केबल. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यू कैन सी for we'll just implement the chip here. There is a SD card. We have to implement it right away. So SD card already implemented मैंने कर दिया है. You can see that there is the SD card. It will already preloaded our Xilinx Linux. So these four components minimum you have to read. So one is our SD card. It always इसके अंदर preloaded रहेगा. Then our 12-volt charger. Then our data cable, then our RJ cable. So this is the all we need to starting the Xilinx board. So let's come up to start that. So after connecting each and every components, we'll have to adjust we have to connect with our workstation or our PC. You can also do it with your own laptop, no problem in it. So we'll do it, we'll use it our workstation for that. So पहले क्या करेंगे, पहले हम अपना RJ cable इसके साथ connect कर लेंगे. So let's come, we'll connect our RJ cable. First we remove our existing one and then connect. So you can see we connected our RJ cable first. Okay, after that we'll do to connect our main basic adapter, sorry not adapter, main basic our data cable. So we'll data cable तो हम फ्रंट पे ऐड कर देते हैं. किसी भी USB भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जस्ट नॉर्मल just a normal, I mean for data transfer. This is not required any high speed data transfer rate. It's not normal data transfer भी हो जाएगा. So then we'll connect our adapter here. After connecting the first data cable, you will see a red light here to blinking. So that means your adapter is properly connected. So then we'll go to the connect this adapter. Then come. No need to see that adapter कहाँ connect कर रहे. Okay. Come up.
So after connecting the adapter and the data cable, you will see that our RJ cable is starting. So it is blinking when the data transfer is properly happening. And उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर मतलब बेसिक जो हमको हार्डवेयर पे कंपोनेंट या फिर हार्डवेयर पे सेटअप करना है, तो थोड़ा सा इतना तक ही है. तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हार्डवेयर सेटअप करने के बाद इसके बाद और कुछ नहीं करना. इसके बाद हम लोग पीसी पे चले जाएंगे. पीसी पे हमको क्या क्या चाहिए, कैसे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करके हमारा मेन जुपिटर नोटबुक को ऑन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. कोई ज़्यादा कुछ ज़्यादा हिट्टेक कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. तो दो पार्ट में मैंने बोल दिया था. पहला तो ये है कि हार्डवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. दिस इज व्हाट आई शोड यू. आफ्टर दैट वी जंप टू द पीसी एंड शो यू दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर दोस पाइप बोर्ड. ओके, सो हमारा हार्डवेयर का कंपोनेंट अभी तो ऐड हो चुका है. पूरा जो हमको सेटअप करना था वो हम लोग कर चुके हैं. अभी हमको सॉफ्टवेयर की तरफ थोड़ा सा जाना है, मतलब हमारे पीसी पे कैसे हम इस हार्डवेयर को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जुपिटर नोटबुक यूज़ करने के लिए आपको एक नॉर्मल कोई भी ब्राउजर चाहिए. यू कैन यूज़ ब्रेव, यू कैन यूज़ गूगल क्रोम, यू कैन यूज़ फायरफॉक्स, वॉट एवर द ब्राउजर यू हैव, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बोर्ड को जो हार्डवेयर कंपोनेंट आपको दिखाया है उसको कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा. द नेम कॉल सॉफ्टवेयर इज पुट्टी. सो आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग होगा. तो आफ्टर डाउनलोडिंग द पुट्टी, यू कैन डाउनलोड वॉट एवर द वर्जन. इस साइट पे आने के बाद 64 बीट 32 बीट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. इस वाला लिंक पे या फिर दूसरे वाले लिंक पे कहीं से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. इट्स फ्री टू यूज़. ओके, डेफिनेटली फ्री टू यूज़. और आफ्टर डाउनलोडिंग द पुट्टी, मैंने इसको इंस्टॉल कर लेना. मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है. तो अभी मैं पुट्टी को ऑन करूँगा और आपको जो सेटअप करना हो उसको दिखाऊंगा थोड़ा सा. तो आफ्टर डाउनलोडिंग द पुट्टी एंड इंस्टॉल इट, ओपन योर पुट्टी सॉफ्टवेयर. थोड़ा सा इस तरह दिखेगा पुट्टी. तो अभी यहाँ पर क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. फर्स्ट जो सीरियल लाइन रहेगा, इस पर आपको COM4, COM3, COM2 जो आपका कंपोनेंट रहेगा उसका नाम देना पड़ेगा. इसको कैसे चेक कर सकते हैं, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस मैनेजर पे ऑन करना पड़ेगा. ये आ गया डिवाइस मैनेजर. डिवाइस मैनेजर को ऑन करने के बाद आप लोग इस पोर्ट पे आ जाना. यू कैन सी देयर द पोर्ट ऑप्शन. दिस पोर्ट ऑप्शन यू कैन सी देयर. पोर्ट ऑप्शन के आने के बाद आप लोग देख सकते हो USB सीरियल पोर्ट COM4 आ चुका है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सीरियल नंबर पे COM4 डायल करना पड़ेगा. आफ्टर COM4 डायल करने के बाद आपको स्पीड देना पड़ेगा 11520. अब मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इस बारे में. तो आफ्टर राइटिंग द सीरियल लाइन, आफ्टर गेटिंग फ्रॉम योर डिवाइस मैनेजर, राइट दैट COM4. उसके बाद स्पीड देना पड़ेगा आपको. इसको सीरियल पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, SSH पे मत करना. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीरियल पे आके डेटा बीट 8 करना पड़ेगा और स्टॉप बीट 1 और पैरिटी को नन करना पड़ेगा. और बाकी जो रहेगा COM4 तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, COM4 को देना पड़ेगा. आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा. बिफोर दैट ओपन आपको शायद नहीं हो सकता, इसके लिए और एक चीज़ करना पड़ता है. क्या करना पड़ेगा आपको, विंडोज़ की R दबा के रन पे जाइए, ncpa.cpl दबा के आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए. आने के बाद हमारा जो इथरनेट केबल हमने लगाया है अपने वर्क स्टेशन पे, आपको क्या करना, दूसरे जो इथरनेट केबल है आपके पीसी पे या फिर अपने लैपटॉप पे, उसको रिमूव कर देना है. जो इथरनेट केबल हमारे बोर्ड के लिए आपके पीसी पे लगा है, उस इथरनेट केबल के जो आपको ऑप्शन आएगा, इसमें क्या करना है, आपको इसको राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद इसके जाना है प्रॉपर्टीज़ पे. प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद इथरनेट केबल की जो IPv4 रहेगा, इसका IP आपको चेंज करना है. डबल क्लिक करके यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस और यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस. अब कौन सा IP देना पड़ेगा आपको, ये कहाँ से पता चलेगा, इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी IP देना पड़ेगा. वॉट एवर द IP इज, यू कैन सी, मैंने लिख के रखा है, यू कैन सी हियर. This is the IP address. Whatever your PYNQ board different IP address definitely रहेगा. तो इस हिसाब से आपका IP address थोड़ा सा बैठा देना, इसको थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो मेरा जो IP एड्रेस मेरा PYNQ बोर्ड का है, मैंने उसको पहले से लिख के रखा है 192.168.2.1. तो मैं क्या करूँगा, इसको अपनी 92.168.2.1, सो 1 यहाँ पर आ जाएगा. After that I have to paste the subnet mask here. Subnet mask 225.225.0 और बाकी blank, left भी blank. Okay, no problem in it. So okay दबाने, उसके बाद okay, ये अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगा. Okay, so after that आपको क्या करना पड़ेगा, पुट्टी को पे फिर से आना पड़ेगा, लॉगिन पे आके टर्मिनल या लॉगिन पे सेशन पे आके इसको ओपन दबाना पड़ेगा. ओपन दबाने के बाद पुट्टी का स्क्रीन आपके पास ऑन हो जाएगा. एक बार एंटर दबाना, ये Xilinx का मेन जो बोर्ड का जो टर्मिनल रहेगा ये ऑन हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर. यू कैन सी इट राइट हियर. ओके, सो इसको छोटा बड़ा आप लोग नहीं कर सकते नॉर्मली. सो दिस इज द पाइथन टर्मिनल वी हैव ऑन. एंड
अभी इस पर थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करने के लिए कैसे हम लोग जुपिटर नोटबुक ऑन कर सकते हैं अपने आईपी के हिसाब से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कोड देना पड़ेगा IP स्पेस ए। IPA देने के बाद यू कैन सी देयर इज टू मेनी थिंग्स हैव इन आउटपुट। सो यहाँ पर 2 IP आपको दिखाना है, iNet करके एक IP और BRD करके और एक IP। आपको क्या करना पड़ेगा, iNet करके जो IP दिया हुआ है 192.168.2.99, ये जो IP है इसको थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आ जाना, ब्राउज़र पे आके इस IP को पेस्ट कर दो, स्लैश को हटा के उसके बाद एंटर दबाओ। एंटर दबाने के बाद आपका जो जुपिटर नोटबुक है खुल जाएगा। अभी ये जो जुपिटर नोटबुक खुला है इस IP के हिसाब से ये टोटली रन कर रहा है हमारे PYNQ बोर्ड पे, यू कैन सी इट। ओके, सो इधर पे शायद खोलने के टाइम आपसे पासवर्ड वगैरह कुछ मांगे, तो पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, XILINX टोटली पासवर्ड रहेगा। आई कैन डेफिनेटली शेयर विथ यू द डॉक्यूमेंटेशन। सो आफ्टर गिविंग दैट पासवर्ड दिस इंटायर स्क्रीन विल ओपन। सो मेन जो चीज़ रहेगा कि आपको ना जो हार्डी कंपोनेंट्स रहेगा, हार्डी जो पाइथन लाइब्रेरीज है उसको आप लोग इधर इंस्टॉल नहीं मत करना, क्योंकि इसमें साइज़ बहुत कम रहता है। आप अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे जो पाइथन लाइब्रेरी उसमें रन करवाना, उसमें थोड़ा सा जो करना है उसमें कर लेना। डिप्लॉय करने के टाइम जो लाइट वेट मॉडल रहेगा उसको अपने जाइलिंग बोर्ड में डाल के उसके बाद आपको रन करवा सकते हो, ठीक है। सिर्फ डिप्लॉयमेंट के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट आई विल शो यू दैट हाउ टू स्टार्ट अ पाइथन जुपिटर नोटबुक। आफ्टर ओपनिंग द जुपिटर नोटबुक आप लोग न्यू पाइथन 3 पे आ जाना। यू कैन सी दैट जुपिटर नोटबुक हैज़ बीन ऑन। मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग कोड रहेगा, यू कैन सी लाइक वेलकम टू PYNQ। इधर पे आप देख सकते हो कुछ वेलकम कोड ऑलरेडी मेरे पास है, लाइक दिस फर्स्ट वर्क आई हैव डन। So definitely you can use those code. I can also share you the code for the sample code, but definitely remember one thing, that you do not install the heavy Python library like scikit-learn or those libraries, PyTorch or TensorFlow. Do not install those Python libraries. And इसमें टर्मिनल पे Python library इंस्टॉल करने के लिए आप exclamatory pip ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, exclamatory pip install numpy ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो एक्सक्लेमेटरी पिप देके। बट द थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दी, इसमें पिप अभी नहीं पाएगा क्योंकि मैंने अभी वो ऑन नहीं कर किया है, तो पिप 3 या फिर पिप पे कुछ होगा। तो मेन सीन ये रहेगा कि आपको इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें हेवी लाइब्रेरी आप लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, अपने पीसी पे रन करवा के इधर पे आप लोग डिप्लॉय करो, दिस इज़ मोर ऑफन। और ये जो चीज़ रहेगा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं IP एड्रेस को लेकर के, क्योंकि हम SSH पे अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ अपना पोर्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। कभी कभी COM4 आ रहा है, किसी का COM3 आ रहा है, तो ये डिफरेंट रहेगा। कौन IP से ये वाला ऑन होगा, कौन IP हमको अपने एथरनेट केबल की IPv4 एड्रेस पे देना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सो डेफिनेटली दोज आर द थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन, बिकॉज मेरे पास भी हुआ था, मेरे को एक बार में नहीं चला था, 2-3 बार थोड़ा सा ट्राई एरर करने के बाद ये ऑन हुआ था। तो डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम आवर लैब। सो thanks for watching this video and welcome again for our lab and from Deeper Analytical Learning. Thank you so much.